ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਨਾ ਹਉ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਪਿਆ। ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਪਿਆ, ਪਰਨਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾ, ਜਿਨ ਤੋ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਕਾਮੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਚਾਤੁਰੀ ਬਾਜੀ ਗਰਬੇ ਕਾਮ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਤੇ ਜਨਮ ਸਿਰਾਨੋ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਸਿਮਰਿਓ ਰਾਮ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਮਿਥਿਅੰਤ ਦੇਹੰਗ ਖੀਣੰਤ ਬਲਨੰਗ, ਬਰਧੰਤ ਜਰਵਾ ਹਿਤਯੰਤ ਮਾਇਆ। ਅਤਿਅੰਤ ਆਸਾ ਅਥਿਤਯ ਭਵਨ ਨੰਗ, ਗਨੰਤ ਸਵਾਸਾ ਪਯਾਨ ਧਰਮੰਗ। ਪਤੰਤ ਮੋਹ ਕੂਪ ਦੁਰਲਭਯ ਦੇਹੰਗ, ਤਤ ਆਸ਼ਰੰਗ ਨਾਨਕ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਗੋਪਾਲ ਕਿਰਪਾ। ਪਤੰਤ ਮੋਹ ਕੂਪ ਦੁਰਲਭਯ ਦੇਹੰ, ਤਤ ਆਸ਼ਰੰਗ ਨਾਨਕ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਗੋਪਾਲ ਕਿਰਪਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਲਾਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇਮ ਹੈ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਾਲ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਬਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਬੁਢੇਪਾ ਅਵਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤੱਕਨੇ ਆ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵੱਲ ਤੱਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਚਪਨ ਨੇ, ਜੋਬਨ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਢੇਪਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਨਸਪਤੀ ਵੱਲ ਤੱਕੋ,
ਜਿਹੜੇ ਪੇਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਅੱਤ ਦੇ ਕੋਮਲ ਨੇ, ਲਚਕਦਾਰ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਕਠੋਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਪੱਤ ਝੜਦੀ ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਪੱਤਾ ਝੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਪੱਤੇ ਦਾ ਹਰਿਆਵਲ ਲਾਲੀ ਮਾਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣਾ, ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੱਤਾ ਰੁੱਖ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਿਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਨੇਮ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲਾਗੂ ਏ। ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਵੀ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਬੁਢੇਪੇਪਨ ਦਾ ਪੀਲਾਪਨ ਲੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਹ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਬਿਨਸਨ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਢੇਪਾ ਆਇਆ। ਬੁਢੇਪੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਮਾ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਏ, ਮਰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਰਨ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੁਝਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਝੀ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਬੁਢੇਪਾ ਦੁਖਦਾਈ ਏ, ਪਰ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦੀ ਮਿਟਦੀ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਹਦੀ ਖੌਮਣਾ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਹਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਬੁਢੇਪੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਰਨਾਪੋ ਇਉਂ ਹੀ ਗਇਓ। ਤਰਨਾਪੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੈਂ। ਤਰਨਾਪੋ ਇਉਂ ਹੀ ਗਇਓ, ਲਿਓ ਜਰਾ ਤਨ ਜੀਤ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਹਰੀ ਨੂੰ ਜਪ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਦ ਜਾਤ ਹੈ ਬੀਤ। ਔਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਮਰ, ਬੁਢੇਪਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਹੁਣ ਉਮਰ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁੱਗ ਚੁੱਲੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਢੇਪੇ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਤਰਨਾਪੋ ਇਉਂ ਹੀ ਗਇਓ, ਲਿਓ ਜਰਾ ਤਨ ਜੀਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛੀਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਇਸ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਰਧ ਭਇਓ ਸੂਝੈ ਨਹੀਂ। ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ। ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਰੋਗ ਮੰਨਿਆ। ਜੇ ਨਾਮ ਪੱਲੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਰੋਗ ਜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਬ ਲਗ ਜਰਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੁਢੇਪੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਗ ਪੈ ਮੰਨਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਧ ਭਇਓ ਸੂਝੈ ਨਹੀਂ। ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚੀਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਝਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ? ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆ 2 ਨੇਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਨੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੇਤਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁਭਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਚਮਕੀਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਹਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਰਗ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨੇਤਰ ਅੱਤ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸਨ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਨੇਤਰ ਤਾਂ ਮਿਰਗ ਵਰਗੇ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਿਰਗ ਦੇ ਨੈਣ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇਤਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ।
गुरु ग्रंथ साहब ने बाणी विच क्या कहन लगे, तुलना तां दे दित्ती भी नैन मिर्ग वर्गे ने, पर याद रखी मिर्ग दे नेत्र भावें अत दे सोहणे ने, यही नेत्र मिर्ग दी मौत दा कारण बनते ने। ये तपदी कोई रेत नूं पानी समझ के ओदे वल दौड़दा है, अखां दे भुलेखे विच मिर्ग मौत दे मूंह विच चला जांदा, नेत्र ही लै डुबे। ते गुरुदेव ने बाणी विच क्या कहन लगे, सुण मुंदे हरनाखिए, हरनाखिए दर ते हरम दे नेत्रां वालीए, हे जीव रूपी इस्त्री मनुख नूं संबोधन कीता है। सुण मुंदे हरनाखिए, गूढ़ा वैन अपार, किते अखां दे भुलेखे विच ना पै जी, पहला वक्त संझान कै तां कीचै व्यापार, किते हरन दी तरह भुलेखा ना खा जी। मैं अर्ज कर रहा, बिरत भयो सूझै नहीं, काल पहुंचियो आन। नेत्र जेड़े बचपन विच तकदे सन, जवानी विच मनुख नूं लुभाएमान कर लैंदे सन, साहब बाबा फरीद साहब कहंदे ने कमाल दी गल, नेत्रां वाले ओ थां तां मौजूद है जिथे अखां कायम सन, न नेत्रां नाल तकदे सन, अखां वाली थां तां कायम है। पर हैरानगी दी गल ए, शरीर दे हुंदियां हुंदियां अखां भी बंदे दियां जवाब दे गईयां। साहब कहंदे ने बुढ़ेपा कितना कु दुखदाई है, कंन सुणदे ने पर उदों बंदे दी हालत कितनी कु तरसजोग है, जदों कंन तां दोनों हैं पर कन्नां विच सुण दी ताकत वो खत्म हो गई। उदों मनुख किन्ना कु दुखदाई हालत में जीवन बसर करदा है, जदों दोनों पैर तां मंजे ते पए ने पर ताकत इन्नी नहीं कि पैरां दे नाल उठ के एक कदम भी तुर सके। किन्ना कु बुढ़ेपा दुखदाई है। हजूर ने बाणी विच क्या कहन लगे, चबन चलन रतन से सुनियर बह गए। इन्हां विच सतगुरु ने स्पष्ट नहीं किया कि अखां जां ए दंद जां ए रसना जां ए पैर। सतगुरु ने रमज भरे बचन कह लगे, चबन चलन रतन से सुनियर बह गए। चबन दा अर्थ जिन्ना नाल तू भोजन चबाना है, भोजन छकना है। चेते रखी, चबन वाले जेड़े करड़े तो करड़े भोजन नूं दंद चब लेंदे सन, हैरानगी दी गल ओ दंद भी चबन वाले शरीर दा साथ छड्ड के चले गए। मूंह तां है पर दंद मूंह विच है नहीं, बिरत भयो सूझै नहीं। किन्ना कु दुखदाई है बुढ़ेपा। साहब कहंदे ने चबन चलन, चलन दा संबंध पैरां नाल है क्योंकि आपां दोनां पैरां नाल तुरने। साहब कहंदे ने चबन चलन रतन, रतन दा अर्थ है जेड़े नेत्र रत्नां दी तरह चमकदे ने। इत्थे रतन दा अर्थ प्रोफेसर साहब सिंह होरां ने नेत्र कीता है। चबन चलन रतन से सुनियर, सुनियर दर ते जिन्ना कन्नां नाल तू सुनदा सैं से सुनियर बह गए। जदों दंद अखां पैर कन बिल्कुल जवाब दे गए ते शरीर अजे कायम है। खेड़े मुत्ती धा, खेड़े दर ते शरीर, मुत्ती दर ते मारी, धा दर ते ढा। कहंदे ने जदों किसे दी मौत हो जाए ते बंदा ढाहां मार के रोंदा है, ते जदों बुढ़ेपे विच सारे साथ छड्ड के चले गए, खेड़े मुत्ती ढाहां, शरीर ने ढा मारी ते कहन लगा जानी चल गए। जानी दर ते प्यारे, जिन्हां नूं मैं प्यारे कहंदा सां, नेत्र दंद ए कन ए अखां मैनूं सारे छड्ड के चले गए। साहब कहंदे ने बिरत भयो सूझै नहीं, काल पहुंचियो आन। भलिया देख बुढ़ेपे विच कुछ सुझदा नहीं पिया। सतगुरु की बाणी विच बाबा फरीद साहब दे सलोकां विच दूसरा प्रमाण है। कहन लगे किन्ना कु बुढ़ेपा दुखदाई है। बाबा फरीद साहब ने बचन कीता, आ साडियां लत्तां ने, आपां पैरां नाल दौड़ने आ ते ध्यान रखियो एक गल प्रभु दा शुक्र आपां खिन खिन करिए जिस रब ने ये आरोग अंग दे दिते। ते चेते रखना जे ये अंग खत्म हो जान ते बंदे दी हालत कितनी कु मंदी। मुसलमान फकीर रहबा होई है जिन्हों रीबिया भी कहंदे ने, ओदे जीवन विच एक घटना मैं पढ़ी। कहंदे ने एक मनुख ने सिर दे ऊपर पट्टी बन्नी सी ते सिर नूं हाथ विच पकड़ के हाय हाय करदा है ते नाले कहंदा, ऐ खुदा तू मेरे तो की लेखा लेना है, मेरा सिर जिहड़ा दर्द नाल पाटदा पिया। ओ सूफी फकीर सी रीबिया ने पुछ लिया, कहन लगी वीरा तू सिर ते पट्टी बन्नी है, खुदा नूं उलामे देना इहदा कारण की? कहन लगा, ऐ फकीर ऐ रब दी प्यारी भैन, कारण इहदे दर्द नाल मेरा सिर पाटदा पिया है, उलामे ना दियां ते होर की? ते उस फकीर दे समझाण दा ढंग सी। कहन लगी, सजना तेरी उम्र कितनी है?
कहंदा 35 साल दी। कहन लगी 35 साल तो पहला कदी सिर विच दर्द होई? कहंदा बिल्कुल नहीं। कहंदी जिस तरह अज हाथ पकड़ के तू रब नूं उलामे दिते ने, जदों 35 साल रब ने जीवन तैनूं तंदुरुस्त दिता, कदी इन्हां हत्थां नूं सिर नूं घुट के पकड़ के उहदा शुकराना भी कीता सी? कहन लगा बिल्कुल नहीं। कहन लगी फिर अरोगता दा शुक्र नहीं, रोग लग जाए तू उलामे देना। प्यारिओ बुढ़ेपा भी दुखदाई है जे नाम पल्ले नहीं। मैं अर्ज कर रहा बाबा फरीद साहब कहंदे ने इन्हां लत्तां नाल मैं पहाड़ां दीयां चोटियां ते भी चढ़िया हां। कहंदे ने इन्हां लत्तां नाल मैं मीलां तक मैदानी इलाकिਆਂ दा भी पंध तय कीता है। इन्हां लत्तां नाल मैं हनेरे विच भी घुमिया। पर हैरानगी दी गल दुनिया दे लोगो, ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕੋਹ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਸਮਝਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਬਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁੱਜਾ ਮੇਰੇ ਸਰਾਣੇ ਪਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉੱਤਰ ਮਿਲਦਾ ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਸਰਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁੱਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ ਜਾਓ ਫਰੀਦ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ 2 ਕੁ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਸਰਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁੱਜਾ ਪਿਆ, ਇਹ 2 ਹੱਥ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕੋ ਦੂਰ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ। बुढ़ेपा कितना को दुखदाई बन जाता है। हजूर कहते ने बिरध भयो सूझै नहीं, जदों कहते ने काल पहुंचो आन की नहीं सुझदा। कहते ने फरीदा इन्नी निक्की जंगी है, इन्हां सोहणियां लत्तां दे नाल थल डूंगर भविओम, थल दा अर्थ मैदानी इलाका, डूंगर दा अर्थ पहाड़ी इलाका, भविओम दा अर्थ मैं घूम के आया। थल डूंगर भविओम अज फरीदा कूजड़ा, अज फरीद देख पानी दा कूजड़ा दर ते कुजा, अज फरीदा कूजड़ा सै कोहा थियोम, अज सराहने पिया पानी दा कुजा सैकड़े को दूर पिया लगदा। साहब कहंदे ने देख बरधंत जरवा, अज बचने कहंदे ने बुढ़ेपा तेरे वल वाधा पिया ते याद रखी अंदर दी जड़ी तृष्णा दी भुख ओ नाम तो बिना नहीं मिटनी। आ पंडित गुलाब सिंह जी ने बाबर सिमरत दे अंदर एक बड़ा प्यारा सवैया दिता है। वो कहंदे ने हे मेरे वाहिगुरु, मैं सोचना वा जदों इस संसार नूं तकना वा ते मन विच एक ख्याल पैदा हुंदा है, मालका आ तन विच जोर सी, तन दा बल ये भी साथ छड्ड गया। हुण तन विच ताकत नहीं रह गई, क्योंकि सिर कंपिओ पग डगमगै नैन जोत ते हीन, तन विच ताकत नहीं। कहन लगे तन दा बल भी साथ छड्ड गए, जेड़े नेत्र बचपन विच मिले सन ये भी छड्ड के चले गए, अखां बंद हो गईयां। कहन लगे जिस माता पिता ने जन्म दिता सी ना, वो माता पिता जन्म देने वाली मां भी चली गई, बापू भी चला गया, सज्जन मित्र भैन भरा कई मौत दे मुंह भी चले गए, पता नहीं केड़े पासे छड्ड के मैनूं चले गए। तीसरा बचन कीता, कहन लगे हुण तां हालत इन्नी कु मंदी हो गई है कि इत्थों तक कि नौकर भी मेरी गल नहीं पुछदा। जेड़े मित्र सज्जन ने पुत्र धियां ने जिन्हां नूं मैं पालिया उन्हां दे संबंध अगे बन गए ने, वो अपने रिश्तेदारां विच मस्त हो गए ने। हैरानगी दी गल, मैं घर दा मूल मोढा मेरी कोई बात पुछदे नहीं पिया। बड़े कमाल दी जिहड़ी उन्हां ने गल कही, एक तां उन्हां ने बुढ़ेपे दे इस रोग नूं बयान कीता। कहन लगे सारे छड्ड के चले गए, बल भी चला गया, नेत्रां दी जोत चली गई, माता पिता चले गए। कहन लगे सेवक की मेरी बात नहीं पुछदा, पुत्र धियां भी ओ अदब नहीं देंदे। पर हैरानगी दी गल मेरे दाता, शरीर दे सारे अंग छड्ड के चले गए, पर एक चंद्री तृष्णा दी बिरती जेड़ी है मंजे ते प्यावां, पर तृष्णा दी बिरती अजे तक मेरा साथ नहीं चढ़दी। मेरे नाल चंबड़ी पंडित गुलाब सिंह लिखते ने, तन के बल अब पीठ दई और हार परे दृग बाल संगाती। कहन लगे तज के ए लोक बिखे हमको, चल आप गए सुर लोक सुजाती। जगमीत सखा मुख फेर गए और सेवक आ ना पूछे मम बाती। कहन लगे मम आए पै लगाम हे तृष्णे, एक तू मम संग रही दिन राती। पर हे पापी तृष्णे, तू तां मेरा साथ नहीं छड्डिया, तू तां मन नूं उसे तरह घेर के रखे। सतगुरु कहंदे ने बाणी विच, कहंदे ने मन तृष्णा वल्लों रजिया नहीं,
शरीर दे अंग साथ छड़ गए। गुरुदेव दे बचन आउंदे ने बाबा कबीर साहब दा शलोक शब्द आसा राग विच जदों बचन करदे ने पढ़ने शब्द 12 वर्ष बालपन बीते 20 वर्ष कस तप ना कियो 30 वर्ष कस देव ना पूजा फिर परस्ताना बिरद भयो। हुण शब्द दे जदों अर्थ करिए ना ते कई बारी बाबा फरी इस कबीर साहब दे शब्द दे अर्थ करदियां 30 तो बाद बुढ़ेपे की गल आई ते बंदा सोचदा भी 30 तो बाद तां बुढ़ेपा आउंदा ही नहीं। सतगुरु ने बाणी विच इह भी कह लगे 30 साल दा बंदा ते फिर अपने रूप नूं सोहना बना के पेश करन दी कोशिश करदा है। जदों असीं पढ़ने 10 बाल तन 20 रवन 30 का सुंदर कहावै। हुण इस शब्द दे अर्थ बड़े रमज भरपूर ने। कहंदे ने 12 वर्ष बालपन बीते 20 वर्ष कस तप ना कियो 30 वर्ष कस देव ना पी पूजा फिर पछताना बिरद भयो। हुण इत्थे 30 वर्ष कस देव ना पूजा दा मतलब 30 तो बाद बुढ़ेपा आ गया। पर गुरु ग्रंथ साहब कहंदे ने 30 का सुंदर कहावै 30 का सुंदर कहावै। इहदा मतलब पंक्तियां आपस विच किवें विरोधी ते नहीं पर इहदे अर्थ बड़े प्यारे कीते। एक गुरमुख प्यारे ने ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 12 वर्ष बालपन बीते 12 साल ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੱਲ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। 20 वर्ष कछ तप ना कियो याद रखी 20 तो ले 12 तो लैके अगे 20 साल होर गिन लै। याद रखना 20 साल अगे होर गिने ने 12 ते 20 32 साल तक कोई जप तप कीते ही नहीं। 30 वर्ष कछ देव ना पूजा चाहते रखना 32 तो अगे 30 साल होर मिल गए। 62 साल की उम्र हो गई बंदे ने भजन बंदगी कीती नहीं ते 62 साल की उम्र विच इहनूं बुढ़ेपे ने आके ग्रस लिया। साहब कहते ने 30 वर्ष कछ देव ना पूजा फिर पछताना बिरत भयो। कह लगे मेरी मेरी करते जन्म गयो सायर सोख भुजंग बलियो। कहते ने मेरी मेरी करदियां देख बुढ़ेपा आ गया। वो 62 साल की उम्र हो गई। सायर सोख सायर का अर्थ समुंदर जेड़ा जवानी का समुंदर ठाठा मारदा सी भलिया हुण वो भी सुक चुका है। भुजंग बलियो भुजंग का अर्थ इत्थे वे बावां जेड़ियां बावां दा बल सी वो भी खत्म हो गया है पर अजे तक मेरी मेरी वाली बिरती खत्म नहीं हुई। सतगुरु ने अगे जेड़ा प्रमाण दिता बड़े कमाल दा कहंदे ने जदों फिर बुढ़ेपा आ जांदा है ना अंदर दी तृष्णा ते मिटदी नहीं। जे किते सारी जिंदगी भगती कीती होवे ते अंदर किते टिक जाए कहंदे ने फिर मन इन्ना कुछ चंचल हो जाता है ज्यों-ज्यों मौत दे दिन नेड़े हुंदे ने फिर बंदा हथ पैर मारदा किते 4 दिन होर मिल जा किते मौत मेरे नेड़े आवी ना। ते कबीर साहब ने उत्तर जेड़ा दिता कहन लगे पहला सी सरोवर पानी दा भरिया उदों तां वट्टां मारियां नहीं उदों तां बन बन्ने नहीं उदों सरोवर पानी दा भरिया सी सारा पानी निकल के बाहर चला गया। हुण जदों सरोवर सुक गया ते सुके हुए छप्पड़ नूं सरोवर नूं जिन्ने मर्जी तू मिट्टी दे बन मार के रख लै सुके सरोवर नूं बन मारन दा कोई लाभ नहीं क्योंकि हुण सरोवर पल्ले रह ही कुछ नहीं गया। अगला बचन कीता कहन लगे पहला जदों फसल हरियावल विच सी उदों तां वाड़ कीती नहीं उदों रज रज के मिर्ग ने इहदी फसल नूं खाधा। मैं अर्ज कर रहा बाणी विच शब्द एक आया वकारां लई मिर्ग गुरद खलाई मोरी जित मिर्ग परत है चोरी। कह लगे जदों हरियावल सी उदों वकारां ने रज के खेती खाधी उदों पूंजां भी रज के पईयां पर बदकिस्मती दी गज जदों खेत पक गया खेत वढिया गया ते पिछों लिया के कंधे कहंदा खेत नूं वाड़ करो ते वेखण वाले लोग हस के कहंदे ने जाओ झल्लिया जदों फसल अजे कायम सी उदों तां वाड़ कीती नहीं ते जदों फसल वड्डी जाए उदों बाद वाड़ करके करेगा नहीं खेत विच कुछ है ही नहीं। कबीर साहब ने बचन कीता कहन लगे सूका सरवल पाल बंधावै दिन चले गए हुण बुढ़ेपा एक सुक्का होया सरोवर है तू इहदे 4 चुफेरे कंध पिया बन सूके सरवर पाल बंधावै लुणे खेत वड्या गया हथ वार करे हुण वारा करना जदों खेत पल्ली कुछ नहीं वार करके की करेगा। आयो चोर तुरंत लै गयो जमदूत चोर बन के आया उन्हें दसिया भी नहीं कदों ले जाना मेरी राखत मुगद फिरै पर हैरानगी की गल ए मौत आ गई बंदे ने मेरी फिर भी नहीं छड्डी तृष्णा इहदे नाल रह गई। सतगुरु की बाणी पढ़दे हैं यही बचन बाबा भीखन जी ने कहा
इत्थों तक तो मैं अर्ज की है भी बुढ़ेपा दुखदाई है, पर गुरु ग्रंथ साहब ने कला इस रोग का जिक्र नहीं किया। मेरा गुरु नानक इस करके वड्डा है, केवल रोग नहीं जे दसदा, ये रोग दे इलाज भी दस देंदा है। पुछया सतगुरु जे इन्ना बुढ़ेपा दुखदाई हो जाए फिर की करिए? मेरे गुरुदेव ने बाणी विच क्या कह लगे, भलिया जदों नैनो नीर बह तन खीना भय केस दुधवानी। हुण देखो इहदे विच रोग भी है ते नाल इहदे विच इलाज भी है। अखां विचों नीर वगदा है ते तन जिहड़ा कमजोर हो गया है, केस दुध वर्गे चिट्टे हो गए। नैनो नीर बह तन खीना भय केस दुधवानी, रुदा कंठ शब्द नहीं उचरा है, अब क्या करे पुरानी। राम राये हो है वैद बनवारी, मेरे वैगुरु हुण तू ही कृपा करके इलाज कर, नहीं ते दुनिया दा कोई इलाज जेड़ा मेरे शरीर ते काम नहीं करदा पिया। राम राये हो है वैद बनवारी, अपने संतां लियो उभारी। किन्ना कु रोग ने खा लिया माथे पीर, कहंदे मत्थे विच दिन रात पीड़ टिकी रहिंदी है। शरीर जलन है, ठंड विच भी शरीर जेड़ा ओ सड़ी जांदा है। करक करेजे माही, कलेजे विच भी पीड़ उठदी है। ऐसी बेदन उपज खरी भई, इहो जिहा रोग पैदा हो गया वाका औखद नहीं जिहदी दवाई दुनिया विच किसे दे कोल नहीं। एक सज्जन ने बड़ी सोहनी घटना लिखी रूमी ने, कहंदा बुढ़ेपे दा छेती कीतिया किते इलाज कोई नहीं। उन्हें बड़ा सोहना एक घटना दिती, कहंदा कोई बजुर्ग वैद कोल गया ते उन्हें कहा सी, कहन लगा वैद नूं मेरियां अखां नूं घट दिसदा धुंधला पाने। वैद ने कहा बुढ़ेपे करके। उन्हें कहा मेरे सिर विच दर्द है। वैद ने कहा यह भी बुढ़ेपे करके। वो कहंदा मैं जदों बोलना वा गले विच कफ आउंदी है, बलगम आउंदी है, कहन लगा यह भी बुढ़ेपे करके। ते उस बाबे नूं गुस्सा चढ़ गया, कहन लगा तैनूं वैद बनाया किन्ने वे, तैनूं अकल ही नहीं। जदों गुस्से विच बाबा कंबन लगा ते वैद बाह पकड़ के कहंदा सच बापू आ जिहड़ा गुस्से विच तू कंबना पिया यह भी बुढ़ेपे करके, क्योंकि खिजिया पिया अपने आप तो। साहब कहंदे ने ऐसी बेदन उपज खरी पई, वाका औखद नहीं, एदा इलाज किते है ही नहीं। पर अगों उत्तर दिता दुनिया दे लोगो, गुरु नानक दे घर एक इलाज जे। पुछया की? कहन लगे जदों माथे पीर शरीर जलन है, करक करेजे माही, ऐसी बेदन उपज खरी पई, वाका औखद नहीं। फिर गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं हर का नाम अमृत जल निर्मल, ए औखद जग सारा, गुर प्रसाद कह जन भीखन पावो मोह द्वारा। गुरु के चरणा नाल जुड़ नाम दवाई है। बुढ़ेपा ते सब ते हुंदा है, पर कदी उस बजुर्ग बापू अमरदास वाल तको, जिदन आए ने उदन 60 साल दी उम्र है। विद्वान सज्जन कोई 60 दी कोई 62 दी कहंदा, खैर 60 साल दी उम्र है ते आके गुरु अंगद साहिब दे चरनां विच डिगे ते गुरु अंगद साहिब घुट के छाती नाल लान लगे, क्योंकि कुड़माचारी है गुरु अंगद साहिब दी सुपुत्री बीबी अमरो गुरु अमरदास जी दे सके भतीजे नाल विआही है। कुड़माचारी गुरु अंगद साहिब छाती नाल लान लगे ते बजुर्ग बाबा अमरदास चरण पकड़ के कहंदे ने सतगुरु तेरे दर ते अज अमरदास कुड़म बन के नहीं, तेरे दर ते नगुरा आया ते मैं सुनिया तू नगुरिया दी महल नूं धो दे। सिख बन आया, सिक्खी दी दात दई। ते जदों मैं भट्टां दे सवैयां विच बापू गुरु अमरदास जी नूं पढ़ना वा ते मन एक वारी झंझोड़िया जांदा है भी लाहनत इहो जी जवानी दे। 62 साल दी उम्र है, 60 साल दी विद्वान लिखदे ने 12 साल उस बाबे ने गागर ढोई है। कमाल दी गल 12 साल विच बाबा केड़े वेले उठदा होवेगा कि खडूर तो ब्यास दरिया दे विच पानी लियाउणा। आप पानी इशनान करन तो पहला गुरुदेव दे इशनान तो पहला उस पानी नाल इशनान कराना। गागर मोढे ते वे ब्यास तो पानी भरना ते गुरु अंगद साहिब दा दरवाजा खुलन तो पहला गागर रिया के रखनी है। एदा मतलब बापू गुरु अमरदास 12 सालां विच तू कदी रात आराम भी कीता कि नहीं कीता? इन्ना सबर करना। ते कमाल दी गल जिहड़ी भट्टा ने कही, कहन लगे गुरु अमरदास ते भी बुढ़ेपा है, उम्र उन्हां दी भी 70 साल दी है। ते भट्ट जालप ने एक बचन क्या कहन लगा, गुरु अमरदास तेरी कमाई नूं नमस्कार। पुछया किन्नी कु कमाई? कहंदे ने गुरु अंगद साहिब दे चरनां विच खलो के तुसीं एक पढ़ाई कीती एक ओंकार दी,
कहन लगे तैं पढ़ियो एक मन धरियो एक। 72 साल दे बजुर्ग बापू तू एक पढ़िया एक नूं हिरदे भी थां दित्ती। तैं पढ़ियो एक मन धरियो एक कर एक पछाणियो। नैन बैन मोए एक एक तेरे नेत्रां विच एक तेरे बचनां विच एक। मेरे गुरु अमरदास जदों तू बोलने तेरे बोलां विच भी एक तो बिना दूजा है ही नहीं। नैन बैन मोए एक एक दो ठाए ना जानियो। सुपन एक प्रतख एक। जे किते तैनू नींद आ जाए ते सुपना भी एक वह गुरु दा है ते गुरु नानक दा तैनू सुपने विच भी गुरु तो बिना दूजा दिसदी कोई। 72 साल की उम्र ध्यान देना। सुपन एक प्रतख एक समय लीनो। ते अगली जड़ी पंक्ति कहन लगे 30 एक अर पंच सिद्ध 35 ना खीणो। इत्थे विद्वानां ने अर्थ दो तरह नाल कीते। 30 एक प्रोफैसर साहिब सिंह करते ने महीने के 30 दिनों विच भी तेनू एक चेते वे। अर पंच सिद्ध ते दाता जी जेड़े 5 तत्तां दा बनिया संसार इहदे विच तू एक नूं देखना ते नाल कहंदे ने 35 ना खीणो ते 35 गुरमुखी दे अखरां विच भी तेनू एक नजर आउंदा है। पर संप्रदाय महापुरुषां ने दे अर्थ होर कीते ने, लगदे ओ भी बड़े जचदे ने अंदर नूं। ओ कहंदे ने 30 एक ओ गिनती करदे ने 30 ते 1 31 अर पंच सिद्ध 31 ते 5 36 35 ना खीणो 36 ते 35 71। कहन लगे गुरु अमरदास तैनू 71 साल की उम्र विच भी एक तो बिना दूजा नजर ही नहीं आउंदा पिया। 30 एक अर पंच सिद्ध 35 ना खीणो। इको जे लाख लखों अलख है एक एक कर वर्णियो। गुरु अमरदास जाल भणे तू एक लोड़े एक मनी। बुढ़ेपा उस बाबे ते भी आया पर अज जदों गागर चुकी डिग पए ने। गुरु अंगद साहब ने पूछया बाबा जी अज देरी नाल क्यों? ते चरण पकड़ ले। नेत्रां विचों नीर दी झड़ी लग गई। मैं अर्ज कर रहा गुरु दर ते बुढ़ेपे वाला भी जुड़ जाए तो गुरु कृपा नाल निवाह दिंदा। चरण पकड़ ले। कहन लगे गुरु अंगद पातशाह पता नहीं अज शरीर जवाब दई जांदा है। गागर चुक के आया अज 12 सालां विच पहली बार गागर मोढे ते रखी ते जमीन ते डिग्या वा। ते जदों अखां विचों नीर दी झड़ी लगी गुरु अंगद साहब घुट के छाती नाल ला के कहंदे ने बाबा अमरदास मैं कई सालां तो तेरे डिगण दी इंतजार करदा पिया सी। कहन लगे दाता मैं डिग पिया। कहन लगे अमरदास जदों फल पक जांदा है कुदरत दा नेम है ओ डिगदा है। अज तू खड्डी विच डिगे मैं तैनू खड्डी तो गद्दी दे के जाऊंगा। तू मोढे ते गागर चुकी गागर तैनू दुनिया विच उजागर कर जावेगी। गागर उजागर करेगी खड्डी तो गद्दी मिलेगी। ते घबरा ना देख तू डिगे मैं तैनू डिगे नू गुरु नानक दा तख्त दे के जाना। उस बाबा बैठा गद्दी ते उम्र बजुर्ग ने। ते कवि संतोख सिंह ने बड़ा सोहना साहब दा जीवन दस्या। मदरा कादे दुध वर्गे चिट्टे केस ने। सतगुरु दा नूर झलिया नहीं जांदा। ते गुरु अमरदास महाराज जदों ओ गुरु बने ते बुढ़ेपे दी गल उन्हां भी कीती। बाबा फरीद साहब ने कहा कहन लगे काली जिनी ना रावियो धौली राव है कोई। जिन्हें जवानी विच रब ने चेता किया बुढ़ेपे विच कदी नहीं याद कर सकता। कहन लगे कर साई सो पिरहड़ी रंग नवेला होए। ते जिस बापू ने बुढ़ेपे विच कृपा लई सी ना वो कहन लगे ठीक है जवानी विच भी जप पर जे बुढ़ेपे विच भी समझ पै गई है तो याद रखी काली धौली साहब सदा है। जे को चित करे अपना लाया पिरम न लगी जे लोचे सब कोए। पर बुढ़ेपे विच भी ए पिरम प्याला खसम का जय भावे तिस दे। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज अज बचनी ए करदे ने। कहन लगे मिथ्यंत देहंग मिथ दर ते झूठ। साहब कहते ने मथ्यंत देहंग आ जिहड़ा शरीर है यह मिथ्या है। इन्हें एक दिन बिलस जाना है। ये झूठा है। शरीर कितना कुछ झूठा है। साहब कहते ने ज्यों सुपना अर पेखना ऐसे जाको जान। कहते ने बिल्कुल संसार ते आया शरीर झूठा है। ध्यान देना एक एक अर्थ वाल। मिथ्यंत देहंग शरीर मिथ्या है। खिणंत खिणंत खीण का अर्थ है कमजोर होना। बलनंग बलनंग का अर्थ है बल ताकत। शरीर मिथ्या इन्हें नाश होने ते जिस बल का तू मान करी फिरना इस ताकत ने भी एक दिन नाश हो जाना।
मिथ्यंत देहंग खिणंत बलनंग। ये जरूर बल जेड़ा खत्म होवेगा, इस बल ने सदा रहना नहीं। ते मैं अर्ज कीती अगे प्रमाणा विच कि शरीर विच बल किन्ना कुछ रहिंदा है। साहब अगे कहंदे ने बरधंत जरवा, बरधंत दर ते वाधा पिया, जरवा जरवा दर ते बुढ़ेपा। याद रखी बुढ़ेपा वाधा पिया ते बुढ़ेपा एक ऐसा है जिहड़ा आके परत के कदी जांदा नहीं। बचपन आया ना, वो चला गया आया सी, उन्हें चले जाना है। जवानी आई, उन्हें चले जाना है। पर बुढ़ेपा प्यारे ऐसा है जिहड़ा कदी जांदा नहीं। एक अदीब ने तां ही लिखिया, कह लगा मेरे मौला तेरी दुनिया फानी देखी, हर चीज जहां की आनी जानी देखी। जो आके ना जाए वो बुढ़ेपा देखा, जो जाके ना आए वो जवानी देखी। बुढ़ेपा ऐसा है जिहड़ा परत के कदी आउंदा, परत के कदी जांदा नहीं। ते जवानी ऐसी जिहड़ी परत के कदी आउंदी नहीं। बरधंत जरवा ये वाधा पिया, जेड़ा जरवा है ये बुढ़ेपा वध रहा है। साहब जी अगे कहंदे ने हत्यांत माया, पर जिथे जिथे बुढ़ेपा वध है ते मन इन्ना पापी है, उन्ना ज्यादा माया विच खचत होई जांदा है। यही कारण मेरे हजूर ने बाणी विच कहा, बुढ़ेपे तो बाद मौत ही, ते मौत तो पहला पहला अपनी चिंतन शक्ति, अपने सोचन का ढंग तब्दील कर दे। जे मरदियां किते हत्यांत माया, माया चेते आ गई ना, ते फिर गुरु ग्रंथ साहब कहंदे ने अंत काल जो लक्ष्मी सिमर है, ऐसी चिंता मैं जे मरै। कह लगे सर्प जौन बल बल, ओ तरह देखी किते मन माया विच खचत ना हो जाए। हित्यंत माया बरदंत जरवा, बुढ़ेपा वध रहा है। हित्यंत माया ते मन माया विच खचत हो रहा है। अगे साहब कहंदे ने अत्यंत आशा, अत्यंत आशा दर ते बहुत ज्यादा आस वध गई। ते साहब जी कहंदे ने अथित्य भमनंग, अथित्य भमनंग, अथित्य दर ते जिन्हें सदा थिर नहीं रहना। भवन का अर्थ है संसार। प्रोफेसर साहब सिंह ये अर्थ करते ने अथित्य भमनंग, ये संसार नाशवंत है, इस संसार ने खत्म हो जाना है। ते जोगिंदर सिंह तलवाड़ा ये अर्थ करते ने अथित्य भमनंग, वो अथित का अर्थ करते ने अतिथि। तू संसार विच इस तरह है जिवें एक प्राहुणे ने रात रह के चले जाना। अथित्य भमनंग, ये संसार नाशवंत है। इन्हें विंश ने शायद कहते ने गनंत सवासा, गनंत दर ते गिनती हो रही है। सवासा सवासा दर ते जेड़े तू साह लेना, महाराज कौन गिनती कर रहे हैं? ते गुरु अर्जन साहब कहते ने भयान, भयान दर ते भयानक। धर्मंग, धर्मंग का अर्थ इत्थे वे धर्मराज। ध्यान दर ते भयानक, भयानक का अर्थ इत्थे विद्वाना ने कीता है जमदूत। जिस दमदूत नूं लोग कहंदे ने धर्मराज दा ओ नौकर है, ते जिहड़ा अत दा भयानक है। जितने तू सवास लेना, गुरु अर्जन साहब कहंदे ने तेरे एक एक सवास नूं गिणदा पिया, जदों सवास खत्म हो गया उन्हें ले जाना। गनंत सवासा, भयान धर्मंग। साहब कहंदे ने पतंत, पतंत दा अर्थ तू डिग्या होए। किथे डिग्या? मोह कूप, मोह कूप, कूप दर ते खूह। ओ मनुखा तू मोह दे खूह विच डिग्गा पिया, पर तेनू पता नहीं तेरे सवासां नूं धर्मराज दा दमदूत जिहड़ा एक एक करके गिणदा पिया। जदों सवास पूरे हो गए ते याद रखी परत के तां इह सवास आउणे नहीं। गुरु ग्रंथ साहब ने कमाल दे वचन कहे, कहंदे ने बंदा दुनिया दी हर चीज खरीद सकदा है। चेते रखो इत्थे बंदे भी खरीदे जांदे जे, कल्ले पशु नहीं, जमीन नहीं, घर नहीं, मोटर गड्डियां नहीं। माया ने इन्ना प्रभाव पालिया, इत्थे मरी हुई जमीर वाले बंदे भी खरीदे जाते, बंदियां दी कीमत भी पैंदी। पर सतगुरु ने कमाल दे वचन कहे, इत्थे बदनाम करने लई भी बंदे खरीदे जाते ने, इत्थे सिफत करने लई भी बंदे खरीदे जाते ने। पर गुरु ग्रंथ साहिब एक गल कहंदे ने, ओ हर चीज नूं खरीदण वाले, जे तेरे कोल ताकत है, जिद्दन तेरे सवास पूरे होणगे इस शरीर ने चले जाना है। सवास तां जे किते एक सवास भी तू रब तो खरीद के दिखाए था। वचन कीता, कह लगे याद रखी भलिया कबीर ए तन जाएगा, सको तां लिहो बहोर। ਇਹਦਾ मतलब चैलेंज किया, जे तेरे को ताकत है तो खरीद के दिखा। सको तो लिहो बहोर, मान कादा करना, नांगे पामू तेग है जिनके लाख करोड़। इतने करोड़ों वाले भी चले गए कि सास नहीं खरीद सके। गनंत सवासा भयान धर्मंग, तेरे सवासा नूं जमदूत गिणदा पिया। साहब कहंदे ने पतंत कू मोह कूप, तू डिब्बा डिग्गा पिया मोह दे खूह विच। इत्थों तक तां दसी मेरे हालत सतगुरु ने साडे अंदर दी। अगे फिर गुरु अर्जन साहब
ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਨ ਬਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਤੰਤ ਮੋਹ ਕੂਪ ਦੁਰਲਭ ਹੈ ਦੇਹੰ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਨਾ, ਤਤ ਆਸ਼ਰੰਗ, ਤਤ ਦਰ ਤੇ ਤਿੱਥੇ, ਆਸ਼ਰੰਗ ਦਰ ਤੇ ਸਹਾਰਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਤ ਆਸ਼ਰੰਗ ਨਾਨਕ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਗੋਪਾਲ ਕਿਰਪਾ। 3 ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ। ਤੇ 3 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਆ 3 ਭਵਨ ਨੇ, 3 ਤਾਪ ਨੇ, 3 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਆ 3 ਗੁਣ ਨੇ, ਰਜ ਤਮ ਤੇ ਗੁਣ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ। ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹੋ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਵੱਢਵਾਂ ਵੀ ਵੈਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਰਦਾਸੀਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚੇਤੇ ਆਵੇ। 3 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਤੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਵੇ। ਮਨ ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚੇਤਾਵੇ। ਤੇ ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲੇ ਕੀ? ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਖ ਵਰਤਾਈ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਹਾਂ ਤਾਂ ਰਚਿਆ ਰਹਿਤ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਾਖੀ ਕਰੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਗੋਪਾਲ ਕਿਰਪਾ। ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਉੱਥੇ ਆਸਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਪੀਏ, ਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਜਪੀਏ, ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਜਪੀਏ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੋਪਾਲ ਕਿਰਪਾ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਵੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ